Manoj Sangha, working in Merchant Navy for last 13 years. Presently selling as DPO on diving ship. और आज हमारे साथ है मिस्टर कृपेश, who is selling as second engineer on this ship. एंड अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड मर्चेंट नेवी में एज एन इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग मनोज। कैसे हो आप? वेरी फाइन, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। तो कहाँ से शुरू किया आपने? Initially, I did the mechanical engineering ओके for 4 years. ओके After that, I decided to join the merchant navy. ओके So after mechanical engineering, there is the option of a GME, graduate marine engineer. ओके। So you have to do 6 months on shore and 6 months on board training. 6 मंथ श्योर पे ट्रेनिंग। Yes, in the college school. ओके And then you will come on board, do the 6 months here, and then you have to go for exams. तो आपने अपनी बीई कहाँ से की थी? BE I did from Pune, government college. गवर्नमेंट कॉलेज। सो उसके बाद आपने दिस अपना जीएमई कहाँ से किया? GME I did with the Great Eastern Institute, Lonavala. लोनावला। Yes. ओके, तो ग्रेट ईस्टर्न एक कंपनी है जिनके खुद के शिप हैं Yes. और उनका खुद का इंस्टीट्यूट भी है लोनावला में। वहाँ से इन्होंने 6 मंथ की अपना जीएमई ट्रेनिंग की, ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियर। Yes. ओके, उसके बाद Yeah, one thing I want to tell that if you want to do the GME, do it from the institute who has the sponsorship to give the seat time on board. That is very much important. यस यस Like a Great Eastern, Anglo, they have their own ships, so you will not get trouble after your 6 months on shore. You will get placement on board for this on board 6 month time. So after you passed out from your 6 month GME course, which all certificate you got? Once I did the GME 6 months, you will not get any certificate at that time. You just will get the CDC, that is the entry, And like a passport. for the STCW cement. basic certificates. Yeah, basic STW you have to do. That institute will arrange for yourself. These are the minimum criteria to come on board. Okay. Then once you come on board, do the 6 months. Then after you are on board 6 months, then you have to do the advanced STW courses. So basically इन्होंने जैसे पहले बी मैकेनिकल किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने 6 मंथ का जीएमई किया और फिर इनको सीडीसी और बेसिक एसटीसीडब्ल्यू के सर्टिफिकेट्स मिले। उस बेसिस पे एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर इन्होंने अपना फर्स्ट शिप ज्वाइन किया और इसी का सेकंड जो ऑल्टरनेट होता है, कुछ लोग 10+2 के बाद डायरेक्ट मरीन इंजीनियरिंग कर लेते हैं 4 इयर्स की, तो उनको ये फिर 6 मंथ वाला कोर्स नहीं करना पड़ेगा। Yes, correct. तो उनके सेम बाद में तो सब प्रोसेस सेम ही फॉलो रहा है। Yes, on board time is same and exams तो is उसके also बाद same. इन्होंने एज ए ट्रेनिंग ज्वाइन किया, तो आपको ट्रेनिंग में कितना टाइम चाहिए होता है? Training minimum 6 months. If you want to do more, you can do. Okay. But for the class 4 exam, minimum 6 months का requirement है. ओके, और उसमें 6 मंथ में वेसल पोर्ट में है या सेलिंग में कहीं भी है? No, it doesn't matter. For the TM, it doesn't matter. प्रोपेलिंग डेज? Propelling days is the condition. Out of 180 days, you need 120 days as a propelling. दैट मींस फुल टाइम पोर्ट में नहीं होना Yes, चाहिए। propelling days means ship sail कर रहा है. Means all engines are running and that is it. ओके, तो वहाँ से पास आउट होने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग है और उसके बाद साइन ऑफ करके बाद जब वापस आप घर जाते हैं, उसके बाद आपको क्या कोर्सेज और Yeah, classes? next procedure is आपको क्लास 4 एग्जाम देना है। उसके पहले आपको एडवांस STCW करने पड़ेंगे। STCW means फायर फाइटिंग एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ऑप्शन में। देन आपको एज अ बी मैकेनिकल आप हो तो आपको पार्ट ए एग्जाम का एग्जाम्पशन मिलता है। जो भी पेपर्स है आपने इंजीनियरिंग में पढ़े, ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, यू विल गेट द एग्जाम्पशन। एंड इफ यू डिड द मरीन इंजीनियरिंग, देन these subjects are already covered. So you have to take the part A exemption and then part B exam written as well as oral you have to attend. For class 4 it is online now. And after that you have to attend the class 2 exam and class 1 exam also. सो क्लास 4 में बेसिकली आपने जैसे 6 मंथ का सी टाइम होने के बाद आपको आके 1 महीने के ऑलमोस्ट STCW कोर्सेज करने हैं और उसके बाद आप रिटर्न दे सकते हैं डायरेक्ट। Yes. आपको कोई कोर्स और नहीं करना है? नहीं। ओके, रिटर्न और उसके बाद आप ओरल। करेक्ट। रिटर्न और ओरल देते हैं MMD में। Yes. हाँ,
तो MMD में जाकर रिटर्न और ओरल देने के बाद इनको COC मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी क्लास 4 का। तो उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं As a fourth engineer. एज ए फोर्थ इंजीनियर। तो फोर्थ इंजीनियर के बाद फिर थर्ड इंजीनियर का जो प्रमोशन है वो आपको कैसे मिलता है? Experience based पे। एक्सपीरियंस बेस पे। Yes, experience and performance. Company will decide when to give you promotion. तो उस बेसिस पे आप ऑन बोर्ड ही और या फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आपको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे विल Yes. प्रमोट यू टू द थर्ड इंजीनियर। इसके लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद थर्ड से जब सेकंड बनना है, क्लास 2 की टिकट चाहिए, उसके लिए फिर आपको सी टाइम चाहिए। क्लास 4 के बाद क्लास 2 का एग्जाम देने के लिए आपको 12 months. 12 मंथ्स का सी टाइम Yes. चाहिए। दैट मीन्स अगर आप 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम आपको करने पड़ेंगे। और उसमें भी यही प्रोपेलिंग डेज वाला काउंट होता है, Yes, the same condition. सेम कंडीशन। Yes. और उसके बाद फिर आप अगर आपका 12 मंथ का सी टाइम हो गया है तो आप आकर आपको कोई क्लासेस अटेंड करनी है फिर से। Yes, there is right now there is one course you have to do. Preparatory course is called as. For class 2 exam, it's now कितने दिन? 1 month only, Okay. and class 1 exam it is of 2 months. Okay, That so you have to आपको क्लास 4 के बाद आपका 12 मंथ्स का सी टाइम होने के बाद आपको एक महीने की क्लासेस Yeah, exam preparatory course, ओके मैंडेटरी है वो। mandatory. ओके, और उसके अलावा कुछ और कोर्सेज? One management course is there, engine room management. Okay. That you have to do. 1 वीक? No, that is of 5 days. 5 डेज। Yes. ओके, उसके बाद फिर यू कैन गो फॉर Yeah, then again you have to come to MMD. MMD is Mercantile Marine Division, which is conducting all courses and has the authority of all rules and regulations, exam related and other posted also. So we have to go to MMD, again take the exemption for a part A. ओके They issue you one certificate as EXN 45. It's a booklet. They will issue you at the time of class 4 exam only, and their whole history, your number of attempts, your performance, everything is recorded there. So the same you have to carry. You have to take the part A exemption from the surveyor, and again you have to follow the procedure. एंड देन Written is part B. You have to give the written and oral also. देन आप यू विल गेट द क्लास 2 COC, Class 2 COC, correct. अगेन द सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर क्लास 2। Yeah. और उसके बाद यू विल बी कंसीडर्ड एज टू प्रमोट फॉर सेकंड इंजीनियरशिप। Yes. और समटाइम्स आप थर्ड इंजीनियर में आएंगे, आपको ऑन बोर्ड प्रमोशन मिल जाएगा। Correct. समटाइम्स एक कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट करने भी पड़ जाएंगे, और उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा टू सेकंड इंजीनियर। और फिर आपको एज ए सेकंड इंजीनियर सेल करना है। और कितना फिर चीफ इंजीनियर बनने के लिए क्लास 1 टिकट लेनी है, उसके लिए फिर से आपको सी टाइम चाहिए। कितना सी टाइम चाहिए? Yes. For after class 2, if you are going for the chief engineer exam, आपके पास अगर सेकंड इंजीनियर का 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस है ओके तो आपको आफ्टर क्लास 4 30 मंथ्स चाहिए, Total. एंड आफ्टर क्लास 2 12 मंथ्स। दैट इज वन कंडीशन। अनदर कंडीशन, अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला क्लास 2 के बाद ओके तो आपको आफ्टर क्लास 2 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए, एंड ओवरऑल आफ्टर क्लास 4 36 मंथ्स। ओके। सो क्लास 4 के बाद का जो सी टाइम है चीफ इंजीनियर का एग्जाम देने के लिए, वो मिनिमम 30 मंथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपका प्रमोशन टाइमली होता जा रहा है तो। बट अगर आपका सेकंड इंजीनियर वाला प्रमोशन अगर थोड़ा डिले भी हो जाता है तो आपको ये जो क्लास 4 के बाद जो 30 मंथ था वो 36 मंथ चाहिए मिनिमम। यस करेक्ट। और बाकी आपका वही है कि क्लास 4 से क्लास 2 12 मंथ्स, एंड देन क्लास 2 से क्लास 1 अगेन 12 मंथ्स if you are selling in a rank of second engineer. If not promoted to second engineer, then you need 18 months after Exactly. class 2 से क्लास 1 के लिए। और फिर आप साइन ऑफ करके आते हैं सी टाइम होने के बाद। उसके बाद आपको 2 महीने की क्लासेस अटेंड करनी यस। उसका क्या नाम है कोर्स का? प्रिपरेटरी कोर्स इज कॉल्ड एज क्लास 1 प्रिपरेटरी कोर्स। 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स। ये कौन से कॉलेजेस में होते हैं ये दोनों प्रिपरेटरी? All courses you have to do from DG approved colleges, like a GME, right from the GME, right for the STCW preparatory courses. If you go for the DG shipping website, you will get all the approved institutes, and from there only you have to do the all courses. तो आपने जो क्लास 2 के प्रिपरेटरी क्लासेस Yeah, कहाँ से की थी? initial class 4 preparation I did from IMEI, that is in Nerul, and another one I did a class 1 for the OERC. ओके It is also in Airoli, Navi Mumbai. ओके। क्लास 1 की आपने 2 महीने की क्लासेस अटेंड कर ली हैं। रिटन एग्जाम आपके क्लास 1 का मेरा रिटर्न एग्जाम हो चुका है, हो गया। ओरल इज रिमेन। ओके, ओनली ओरल इज रिमेनिंग। आफ्टर दैट ही विल गेट हिज COC फॉर चीफ इंजीनियर। और जब भी कंपनी कंसीडर करेंगे इनको, he will be promoted as chief engineer. One thing, COC is the minimum requirement for that rank, but promotion is all depends on the
company Yes. and market requirement. It is not like that you will clear the COC and as soon as you will get the promotion. You will get, It takes time. but it depends on the situation. Depends on the requirement. Yeah, experience as well as company requirement. Okay. और इसके अलावा आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को Yeah. जॉब के बारे में? One thing, many people know the merchant navy has a good pays. That is right. It is lucrative and adventurous field, but at the same time it is tough as well as you have to live away from the family for a long time. You have to be mentally tough than the physically, and rather than that, it is well challenging. And I think it's good those who are interested to explore the another adventures. So all the best guys. और and पेस की अगर हम बात करें, जैसे आपने पेस की Yeah. बताया, तो मेन क्रेडिट की अगर हम बात करें तो क्लास शुरू में जो ट्रेनिंग इंजीनियर जाते हैं, जूनियर इंजीनियर, उनको कितनी सैलरी मिलती है अप्रोक्सीमेटली? राइट नाउ अभी यहाँ पे दो चीज़ें, तो इंडियन कंपनी मीन्स इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी दे विल गेट द मनी इन रुपीज में मिलता है. ओके फॉरेन कंपनी जाए तो यूएस डॉलर्स में सैलरी मिलता है. ओके तो कंपनी टू कंपनी इट वेरीज, बट नॉर्मली इंडियन रुपीज में बताता हूँ, 15,000 से लेके 45,000 तक आपको टीएमई के रैंक पे सैलरी मिलता है. जो 6 मंथ वाला टाइम Yes. था, उसके बाद क्लास At 4 the का टिकट stipend, लेने it's के like a बाद stipend. क्लास 4 टिकट लेने के बाद या फोर्थ इंजीनियर सैलरी अगेन इट वेरीज फ्रॉम कंपनी. एंड मर्चेंट नेवी में तो आपको बहुत टाइप के शिप मिलेंगे, तो टाइप ऑफ शिप के हिसाब से भी सैलरी चेंज होगा. और लेकिन एक वेरिएशन ऑन एन एवरेज आपको बताना चाहूँगा कि क्लास 4 का 80,000 से लेके 1,30,000 तक सैलरी जाता है एज अ फोर्थ इंजीनियर. थर्ड इंजीनियर का अगेन डॉलर्स में अगर बात करें, डॉलर्स में, ये इंडियन रुपीज में मैं रेंज बता रहा हूँ. ओके. तो 80,000 से लेके कन्वर्ट करेंगे तो 130-140 तक जाएगा. फोर्थ इंजीनियर की सैलरी है थर्ड इंजीनियर का अगेन 40,000 मोर देन थर्ड इंजीनियर, 40 to so 50,000. around more than 1.5 or 1.6. In between 1.5 to 2 Okay. lakhs. Hmm. And as a second engineer, you will get start from 2.5 lakhs, then onwards 4.5 up to 5.5 lakhs. Depend on the type of ship. Or then And experience. chief engineer we can say is It's right from the 5 lakhs to 8.5 lakhs. 8. और टैंकर्स गैस कैरियर्स पे उनकी थोड़ी और भी बढ़ जाती है Yes. सैलरी. तो बट सैलरीज के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये सैलरीज आप जब तक ऑन बोर्ड हैं तब तक हैं, जब आप घर पर हैं तो सैलरीज नहीं है. Correct. सो यू कैन काउंट इट. अगर आप 6 महीने काम कर रहे हैं तो 6 महीने, अनदर जो 6 मंथ है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2. Exactly. और आपको एनआरआई टाइम कंप्लीट करना पड़ता है. अगर आप फॉर्म गोइंग वेसल्स पर Yes, कर yes. रहे हैं तो आपको अगर एक साल में आपको 180 डेज और 182 NRI either way, on safer side 184 days. 184 डेज आपको आउट ऑफ इंडिया मीन्स शिप पर काम करना है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में. अगर नहीं करेंगे तो आपका टैक्स कट जाएगा, तो सैलरी में काफ़ी सैलरी कम हो जाएगी थोड़ा उसके हिसाब से. करेक्ट. और आपको तो ग्रेट ईस्टर्न से किया था, तो पास आउट के बाद कॉलेज ट्रेनिंग के लिए मिल गया होगा उस टाइम पर easily. शिप तो ग्रेट ईस्टर्न के तो मुझे सेम कंपनी के शिप पे मैंने किया. एक्चुअली 6 मंथ रिक्वायरमेंट है, मैंने 2 शिप किया था वो टाइम पे, बिकॉज फ्यू थिंग्स आई वांट टू लर्न मोर. तो मैंने टीएमई के टाइम पे अराउंड 12 मंथ्स टाइम किया था, एंड देन आई वेंट फॉर द एग्जाम. ये भी एक पॉइंट है दोस्तों. ऐसा नहीं है कि आपका जस्ट कट टू कट आपने सी टाइम कंप्लीट किया और भाग लिए. यू शुड ट्राई टू लर्न एज मेनी थिंग्स एज यू कैन. दैट इन्होंने अपना जैसे 6 मंथ चाहिए था बट 12 किया, सो दैट ही कैन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट यस टू वर्क एज अ फोर्थ इंजीनियर, बिकॉज एक बार आप ऑफिसर लेवल का प्रमोशन ले लेते हो तो आपको जो भी आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मिनिमम, वो आपको करना है. क्योंकि ऑन बोर्ड शिप देयर इज अ मिनिमम क्रू, ईच क्रू हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज. यस तो आपको अपना ड्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई नहीं वहाँ पे आपके हेल्प के लिए. तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट वंस यू आर टेकिंग द प्रमोशन. दैट्स राइट. That's I think another thing I missed to tell during colleges also. आपको इंडियन कॉलेजेस में भी आप GME कर सकते हैं. एट द सेम टाइम यू कैन गो फॉर द UK also. The best option means there are 2 options. Exams also you can appear in the Indian MMD as well as the UK also. There are 2 options. There is option for UK also. There are colleges who are conducting almost the same level exams. In The COC is equivalent. Yeah, COC we can get Indian COC as well as from the COC from the UK. Okay. और दोस्तों ये बात है कि इन्होंने जैसे इनका ट्रेनिंग के बाद इनको फर्स्ट शिप इजीली मिल गया बिकॉज ही वाज ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. बट अगर आप फ्रेशर हैं और आप बीटेक करके या फिर मरीन इंजीनियरिंग करके
अपना प्लान कर रहे हैं तो शिप के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। सो बेटर रहेगा कि आपको कोई कंपनी 100% गारंटी, कोई कॉलेज आपको गारंटी दे कि हम विल प्रोवाइड यू द फर्स्ट शिप फॉर द ट्रेनिंग एंड यू शुड प्रोसीड देन ओनली आई थिंक। Yes, बिकॉज आजकल एजेंट काफ़ी आ गए हैं जो आपसे ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग शिप के लिए भी आपको काफ़ी पैसे डिमांड करेंगे और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। बाकी तो अगर कॉलेज आपका वहीं रहेगा जैसे सर का था तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। Yes, and a few important links आपको दे देंगे DG shipping and all. You can go on the website, each and every all in admission, approved colleges, examination structure. आप you will कुछ get. कॉलेज Yeah. सजेस्ट कर सकते हैं जो आपको वर्बली याद हो? I did it 15 years back, but right now I don't know the standards. But a few good colleges like Tolani we have, Samudra Institute is there, then the Anglo-Eastern Institute is there. Yes. SCA has its own college, sponsorship program. As well as Pune guys has a managed for this. Lonavala Great Eastern Institute is there also, and a few new institutes opened. But please check before you take the admission on the DG Yes. website, the authenticity and Yes, sponsorship. yes. So that's all. Yeah. ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछें एंड वी विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू, हैव अ गुड डे। All the best. ऑल द Thanks. बेस्ट, बाय बाय।